Johar to you all. I am Suman Kiro from Simdega, Jharkhand. From today we shall begin the chemical properties of haloalkanes. I have already told you that haloalkanes are one of the most reactive organic compounds. Okay, and this reactivity is due to the polar nature of carbon-halogen bond, and this polarity arises due to large electronegativity difference between carbon and halogen. Between carbon and halogen. Okay, carbon and halogen. Because halogen is more electronegative than carbon, it pulls the bonded electron towards itself, and therefore a partial negative charge is developed on halogen and a partial positive charge is developed on carbon. Okay, and due to the polarity of carbon-halogen bond, this bond becomes weak. It can be easily broken, and in the place of halogen, nucleophiles can come. Okay, and therefore first we shall see nucleophilic substitution reactions. Okay, nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions. Nucleo comes from nucleus and philic comes from philia. And you know, nucleus is positively charged, and therefore a nucleophile is that species which is negatively charged or neutral, which can donate a pair of electrons. Okay. So these nucleophiles can be OH minus, OR minus, RCOO minus, S2 minus, Cn minus, NC minus, etc. ओके, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम हैलोअल्केन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी अन्य ग्रुप्स में बदल सकते हैं। तो इन रिएक्शंस में हम देखेंगे कि कैसे हम एक हैलोअल्केन को अल्कोहल में बदल सकते हैं, ईथर में बदल सकते हैं, सायनोअल्केन में बदल सकते हैं, एस्टर में बदल सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स में बदल सकते हैं। Okay, so haloalkanes can be converted into all the other groups directly or indirectly. Okay, nucleophilic substitution reactions. First reaction is substitution by OH group. Substitution by OH group. This you can say formation of alcohols. Formation of alcohols. Okay. What is the reaction condition? When haloalkanes are boiled with aqueous KOH or NaOH or moist silver oxide, then alcohol is formed. Okay, so when a haloalkane is boiled with either aqueous NaOH or KOH, then alcohol is formed. Okay, so when a haloalkane is boiled with either aqueous NaOH or aqueous NaOH or KOH, then alcohol is formed. Okay, so when a haloalkane is boiled with aqueous NaOH or KOH, then alcohol is formed. Okay, so when a haloalkane is boiled with either aqueous NaOH or KOH, then alcohol is formed.
alcohol is formed. Okay, in the place of NaOH you can take KOH. Okay, this must be aqueous. If you take alcoholic, then we get elimination product, not the substitution product. Okay, ROH plus KX. And if you take moist silver oxide, okay, moist silver oxide is silver hydroxide plus, okay, RX plus AgOH. Okay, the product will be ROH plus AgX. Okay, moist silver oxide is silver oxide plus moisture. Okay, moisture. Then you get silver hydroxide. So, the formula of moist silver oxide is AgOH. So, when haloalkanes are boiled with either aqueous NaOH, aqueous potassium hydroxide or moist silver oxide, then alcohol is formed. Okay, let us see a few examples. Okay, suppose you want to convert chloroethane into ethanol, then you have to boil it with aqueous KOH or NaOH or moist silver oxide. The product will be CH through CH2OH plus KCl. Okay, if you take 2-bromopropane and boil this with either aqueous KOH or NaOH, you get propane to all or isopropyl alcohol plus KBr. Okay, but if you take a tertiary alkyl halide, tertiary haloalkane, then the product will not be alcohol. Okay, it will be alkene. Okay, 3-degree alcohols, 3-degree alkyl halides do not form alcohols. They form alkenes. ओके, तो ध्यान में रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का तो कन्वर्शन हो जाता है अल्कोहल में, लेकिन टर्शियरी हाइलो अल्केन का कन्वर्शन अल्कोहल में नहीं होता है। इसका कन्वर्शन इसका एक्चुअली डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है। यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल हट जाएगा, ठीक है, तब बनेगा 2-मिथाइल प्रोपीन। ओके, ठीक है, आपका अभ्यास के लिए एक आध दो सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। CH3 CH2 CH2Br प्लस NaOH AQ बॉइल कंप्लीट करना है। ओके, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस KOH aqueous boil, what will be the product? ओके, चलिए इसको बनाइए। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है झारखंड बोर्ड में। ओके, सिंस आई टीच इन झारखंड बोर्ड and therefore I have some idea of how the questions are asked in Jharkhand board. Okay, ठीक है, तो
बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोइथेन को बॉईल करने से, है ना, एक्वस KOH के साथ बॉईल करने से क्या बनता है, या बोलेगा कि अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने से क्या बनता है। तो आप यहाँ एक्वस रहेगा तो इथेनॉल बनेगा, अगर यहाँ अल्कोहलिक रहेगा तो इथीन बनेगा। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। अगला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ओके, तो जब अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ तो ईथर बनता है। ओके, when haloalkane is heated with sodium alkoxide, then ether is formed, that is RX plus R dash ONA, and a heat, then you get ROR dash plus NaX, and this reaction is known as विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, और यही है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, अब थोड़ा सा सीख लेते हैं ये सोडियम अल्कोक्साइड का नाम कैसे बनता है। जैसे अगर हमारे पास है CH3ONA, ठीक है, CH3ONA, तो इसका नाम लिखते हैं तो सोडियम से शुरू करते हैं, सोडियम प्लस अल्क मतलब होता है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट प्लस ओके ऑक्साइड, वर्ड रूट प्लस ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, एक ही कार्बन है इसलिए वर्ड रूट होगा मेथ जोड़ ऑक्साइड, मीथॉक्साइड। ओके, ऐसे ही अगर होगा CH3CH2ONA तो इसको बोलेंगे सोडियम ईथॉक्साइड। ओके, अगर होगा CH3CH2CH2ONA तो इसको बोलेंगे सोडियम N प्रोपोक्साइड। अगर होगा CH3ONA तो इसको बोलेंगे सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, प्रोपोक्साइड। अगर रहेगा C6H5ONA तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ठीक है, तो जब हैलोअल्केन को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो ईथर बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3Cl प्लस सोडियम मिथॉक्साइड, तब बन जाएगा डाईमिथाइल ईथर, या इसका आईपैक नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। आईपैक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन, मिथॉक्सी मीथेन। क्या इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर।
ऑक्सीजन के दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। तो इनका नाम होता है, आईपैक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अल का मतलब वर्ड रूट में हम जोड़ देंगे ऑक्सी, फिर और दूसरा अल्काइल ग्रुप का वर्ड रूट, फिर उसमें जोड़ देंगे प्राइमरी सफिक्स एन। ओके, अगर ईथर अनसिमेट्रिकल है तो छोटा अल्काइल ग्रुप को अल्कोक्सी के रूप में लेते हैं। ओके, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर the smaller alkyl group is taken as alkoxy and the larger one is taken as the parent alkane. Okay. Okay, if you take CH3Cl and sodium methoxide, okay, sodium methoxide, okay, ethoxide, not methoxide, sodium ethoxide, then the product will be CH3CH2O CH3 plus NaCl. Okay, this is methyl group, this is ethyl group, so its name is methoxyethane, methoxyethane. Okay, and in case of common name क्या करते हैं, इन अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर या एथिल मेथिल ईथर। ओके ओके, ठीक ऐसा ही अगर हमारे पास रहता CH3CH2Br प्लस C6H5ONa, ओके, सोडियम फिनॉक्साइड, तो हमारा ईथर हो जाएगा C6H5OCH2 CH3 प्लस NaBr, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन, ओके, इथॉक्सीबेंजीन या इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, ठीक है, तो एक आध सवाल देता हूँ आपके अभ्यास के लिए, ठीक है, आप बना लेना CH3 CH2 CH2Br प्लस CH3ONa, ओके, हीट क्या बनेगा। ओके, और एक देता हूँ CH3CHCl CH3 प्लस CH3CH2ONa। ओके, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हाइलो अल्केन और इधर सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा उसी कार्बन के माध्यम से जिसमें हाइलोजन है, ठीक है। जैसे इस कार्बन में ब्रोमीन था तो इधर में इसी कार्बन से शुरू हुआ, ठीक है। गलतियाँ कहाँ करते हैं आप लोग क्या करते हैं, यहाँ O लिखने के बाद CH3 CH2 लिखते हैं। वैसा करने से क्या होगा, CH3 में कार्बन का बॉन्ड 5 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 रखना है। ओके, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है, RCOO। तो इसको आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तब एस्टर बनते हैं। When alkyl halides are heated with sodium salt of carboxylic acid, then esters are formed. Okay, that is Rx plus R dash COOAG heat, then we get RCOOR plus AgX. Okay, for example, if we take chloromethane and we take sodium salt of formic acid or methanoic acid, okay, this is silver formate or methanovate, silver methanovate, then the product will be COOCH3 plus AgCl. ओके, तो एस्टर का नाम करते हुए समय इधर से नाम शुरू करते हैं मिथाइल, और ये जिस एसिड का एस्टर है उस एसिड के नाम से इक एसिड के स्थान में एट लगाते हैं, तो ये जाएगा मिथाइल मेथेनोइक एसिड से मेथेनोवेट, मिथाइल मेथेनोवेट। ओके, ऐसा ही अगर हम लेते CH3CH2Br प्लस CH3COOAG, ओके, सिल्वर असीटेट और सिल्वर इथेनोवेट, तब बन जाएगा इथाइल इथेनोवेट। ओके, इथाइल इथेनोवेट प्लस AgBr, ओके, इथाइल इथेनोवेट। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल हाइलाइड और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट आप ले सकते हैं। ओके, अगर हम लेते CH3Cl प्लस C6H5COOAG, ये है सिल्वर बेंजोवेट, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा C6H5COOCH3 प्लस AgCl, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजोवेट, या मिथाइल बेंजीनोवेट। ओके, यहाँ भी कुछ सवाल देता हूँ मैं आपके अभ्यास के लिए। ओके, CH3CH2Cl प्लस HCOOAG, ठीक है, इथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर मिथेनोवेट। ओके, CH3Br प्लस CH3CH2COAG, ये है सिल्वर प्रोपेनोवेट। ओके, तब क्या बनेगा, ठीक है, आप अभ्यास कर लेना। ओके, ठीक है, अभ्यास कर लेना और इसको हल करके, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ओके, ठीक है, और एक देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय सायनो ग्रुप। ठीक है, CN,
इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ cyanoalkanes, formation of cyanoalkanes. Okay. Fourth रिएक्शन, तो जब हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH है ना, इथेनॉलिक KOH के साथ KOH नहीं, इथेनॉलिक पोटासियम साइनाइड KCN के साथ हीट किया जाता है तो सायानो अल्केन बनता है। When an alkyl halide is heated with alcoholic KCN, then cyanoalkane is formed. Okay, that is RX plus KCN. Okay, alcoholic ना, और इथेनॉलिक in the presence of ethyl alcohol. Then we get RCN plus KX. ओके, तो यहाँ ध्यान देना है, अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो अल्काइल साइनाइड बनता है, अल्कोहलिक AgCN के साथ हीट करते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, CH3Cl plus KCN alcoholic, then we get CH3Cn plus KCl, okay, cyanomethane या मिथाइल साइनाइड। ओके, CH3CHBr CH3 plus KCN alcoholic, then we get CH3CHCN CH3 plus KBr। ठीक है, तो ये सिंपल द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ब्रोमीन की जगह में साइनाइड, साइनाइड की जगह में ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 2-सायानोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल साइनाइड, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड। ओके, ऐसा ही अगर हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या आयोडाइड, ओके, 2-iodO-2-मिथाइल प्रोपेन प्लस KCN अल्कोहलिक, तब बन जाएगा CH3CH3, यहाँ पर आयोडीन के जगह में CN, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KI। ठीक है, ये है 2-सायानो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-सायानो-2-मिथाइल प्रोपेन या टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड। ओके, यहाँ भी आपके अभ्यास के लिए मैं एक दो सवाल दे देता हूँ। CH3CH2Br प्लस KCN अल्कोहलिक क्या बनेगा? ठीक है, CH3 नहीं, C6H5CH2I, ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड या बेंजिल आयोडाइड, इसको हम अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ये प्रश्न आप हल कर देंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है
है ना, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। एक वीडियो को 10-15 मिनट का वीडियो को अपलोड करने में मुझे 3 घंटा लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास संसाधन भी नहीं है, मैं क्योंकि अभी सभी दुकान बंद है ना, लॉकडाउन के चलते खाद्य पदार्थ की दुकानों को छोड़ के बाकी सब दुकान बंद है, इसलिए मैं ना लाइट सिस्टम ठीक से कर पा रहा हूँ, ना बोर्ड का क्वालिटी ठीक कर पा रहा हूँ। फिर भी से मैं मेरे पास जो संसाधन है उसी से आपके लिए ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है, कुछ हेल्प मिलती है, तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वे भी कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, ओके, बाय।